कल के कोई डाउट्स है क्या? कुछ क्लियर करना है? मॉर्निंग सर। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, ओके है ना? जो कल हमने हाँ हाँ बोलो ना, क्या है? Everything is clear, sir. Okay, okay, everything is clear, na? Good, good. Okay, so today we will look at two sessions, two modules. One is how to write a proposal for getting the grant or research funding, and second will be, which is more important, is ethics, how to follow ethics in research process or while conducting the research. Okay, this particular session that we are doing today, the first session, ये आपको पोस्ट PhD काम में आएगा if you decide to pursue major projects, minor project, or even the independent research. Those who have a keen acumen towards research will find it very, very interesting. At the same time, we will also see कि हम जो PhD में रिसर्च करते हैं उससे ये कैसा अलग होता है या कौन से लेवल का होता है. जैसे हमने कल we spoke about the theoretical framework. So for such kind of proposal, theoretical framework is a mandatory. So it is one step up. So if you can build something from this session into your PhD thesis, that will be a wonderful thing to do. Otherwise, those who wanted to pursue further, definitely this will be a stepping stone for most of you. Okay. So in our country, we have hundreds of agencies which invite proposal for conducting research on numerous subjects. Okay, typical process is that uh, once a year they invite it. It's only yearly process, and uh, they do their evaluation and they grant the project by say 1st of April because of the financial year. And these are all short-term projects, maximum 1 year, and most of the projects are 6 to 8 months, so that ये एजेंसी अपना प्रोजेक्ट का रोटेशन कर सकती है. बहुत अनलाइकली आपको 12 महीने से लंबा प्रोजेक्ट मिलेगा अगर एक्सेप्शनल केस होगी तो. सेकेंडली, ये एजेंसियां जितनी भी हैं, थोड़ा सा उसमें एक ट्वीक या बायस ये है कि say if there is 100 rupees available for a grant, then typically 60, 65, even 70 rupees will go to science, and the remaining 35, 40 rupees will go to non-science subject. So the bias is more towards science, and the reason for that is that the applicatory research has more value in improving the livelihoods or lifestyle or well-being of the mankind. And being a scientific or being a science-oriented research, the applicability is universal. So इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वेटेज साइंस वालों को दिया जाता है, which is I think to certain extent is okay. For remaining 30-35% or up to 40%, mostly the research is directed towards understanding the impact, understanding the policy implication, right? So these are, some flagship projects which the government undertakes, and then there are agencies which will evaluate these flagship projects. Say, for example, there was a study done about the Ujjwala, which is about the which is a central scheme, but it was conducted in the state of Odisha, and there was a project to evaluate the impact of MG Narega on the tribal people in Amravati district in Maharashtra. So these are mostly policy oriented, and impact assessment or that kind of work is taken. Sometimes a conceptual research is also being invited. So say if somebody like just before the RTE, right to education came, I'm sure a lot of research or a lot of research inputs were taken by Union HRD Ministry and Education Ministry, that whether we should
launch the right to education scheme in our country. तो forthcoming policy के लिए भी research किया जाता है. So, before we start writing any proposal, I will guide you on what are the tips, how to write it, what is the process, how they evaluate, and then at the end I will tell you how we can write in such a way that our proposal gets into top 10%. So for any proposal, research proposal, we have to start with a very good idea. Okay. Now that idea can be scientific, that idea can be related to policy or anything else. I mean, there are certain agencies that also invite out of the box ideas. I tell you, one of my colleagues, his son, नागपुर का ही रहने वाला है, वो जॉर्जिया टेक से उसने MS किया and immediately after MS he got a job in Apple, अमेरिका में. तो आफ्टर 1 साल के बाद उसका शादी हुआ नागपुर में, तो वो आया था. तो आई आस्क्ड हिम कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो. ये 3 साल पुरानी बात है, 3-4 साल पुरानी बात है, 17-18 की बात है. ही सेड सर आई एम वर्किंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव द पावर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी एंड चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी. अब आज आप देखिएगा, आपको कई ऐसे गैजेट्स मिलेंगे जिसमें 5 मिनट में 20%, 40%, 80% बैटरी चार्ज हो जाती है. Even we are seeing that application in electric vehicles now, be it a 4-wheeler or be it 2-wheeler. So there are certain professional companies. I mean, if you are very keen into electrical engineering or battery science or chemical or molecular chemistry, even corporates are funding this kind of research, which can be immediately useful to them. So idea. Now, many a time, the ideas which are very good, but which are very poorly written, जिसको हम पैकेजिंग कहते हैं. अगर आइडिया अच्छी है बट उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है तो उसको भी निग्लेक्ट किया जाता है. कई बार आइडिया बहुत पुअर या एवरेज या बिलो एवरेज होती है, बट बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको भी निग्लेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, unlike the synopsis of our PhD, for research grant proposal, we must improve our packaging. Packaging का मतलब है we should be able to write it in a clear, concise, well-articulated manner in a seamless way, so that कोई भी आपका proposal पढ़ेगा तो उसको पूरा end-to-end idea आ जाना चाहिए कि how you are taking your idea from conceptual phase to the implementation or successful phase, right? Then what we have to do? First and foremost, we have to find the right agency that will fund our idea. Okay, as I said earlier, there are hundreds of agencies available. इनकी वेबसाइट्स है, इनके कभी पेपर में ऐड आते हैं, किसी एकेडमिक जो ग्रुप्स है लिंक्डइन पे, उन पे इनके एडवर्टीजमेंट आती है, वहां से फॉरवर्ड होती है. तो वी हैव टू फाइंड द एजेंसी. वंस यू फाइंड द एजेंसी, वी हैव टू स्टडी द फंडिंग गाइडलाइंस. ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी फंडिंग गाइडलाइन? बिकॉज मेनी अ टाइम those guidelines will explicitly mention what a candidate or researcher must do in order to fulfill his or her obligation. There are number of things mentioned in those guidelines, including how payment will be made, what kind of reporting you have to do, where will be your coordinator in case you are facing some difficulty, how you are going to monitor and evaluate your proposal, evaluate your project, so on and so forth. तो वो 5-6 पन्ने की गाइडलाइन होती है, वो आपको शांति से पढ़ना है. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि whether your idea falls in a funding theme or not. Many a time the funding themes are broad, generally ये broad होती है. कई बार they are very specific. So say some agency is talking about robotics. So then robotics is a very narrow theme.
but say some funding agencies talking about chemical engineering or molecular technology, or say even social science or economics or finance, then these are very broad themes and they do get lots of proposal. अगर broad में आप डाल रहे हो तो chances that कि आपका proposal वहाँ accept होगा. कई बार candidate क्या करता है, गलत थीम का प्रपोजल गलत थीम में भेज देता है, तो वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है ना. सो डोंट डू दैट. देन around 30-35% of the agencies, they provide or display the criteria of funding, how they are going to fund it. That means they give the weightage, जिसको से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वेटेज होगा, आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक वेटेज होगा, आपके हाइपोथेसिस का एक वेटेज होगा, आपके प्रोबेबल इम्प्लीकेशन उसका एक वेटेज होगा, और मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन बजट इनके भी वेटेज वो देते हैं. तो अगर क्राइटेरिया दिया हुआ है तो जिस सब सेक्शन को या सेक्शन को ज्यादा वेटेज है उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है. अगर वेटेज नहीं दिया है, जो कि 70% एजेंसीज नहीं देती है, दे डोंट डिस्क्लोज हाउ दे विल फंड इट, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, तो आपको जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है उसमें लिखिए, या तो आपको आपके मन से फॉर्मेट बनाने का है और आपको वो सबमिट करने का है, राइट. We can't rush to write the proposal without carefully studying our funding guidelines. Okay, once you are comfortable with the guideline, then only you start what you call writing the proposal, because many a time among those guidelines are also the highlights, जिसमें लिखा रहता है कि आपको कौन से स्टेटमेंट करने हैं, आपको कौन सा सेक्शन मैंडेटरी है, आपका प्रपोजल लेंथ कितना होना चाहिए, आपके हाइपोथेसिस कितने होने चाहिए, ये सब दिया जाता है. तो इन एनी केस गाइडलाइन पढ़ना जरूरी है, थीम अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और क्राइटेरिया फंडिंग का दिया है तो वो समझना जरूरी है, और उसके बाद हम अपना प्रपोजल लिखने की शुरुआत कर सकते हैं. अब इसमें 2-3 चीज जरा हटके है. हटके इन द सेंस दैट research projects are only given to the meritorious students. ये थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत भी है. सही इसलिए है क्योंकि फंडिंग एजेंसी गेट अश्योर्ड कि अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट दिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा और उसका अच्छा आउटकम आएगा. और गलत इसलिए है कि मेरिटोरियस का मतलब अच्छा नहीं हो सकता. ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिनके पास मेरिट नहीं है, बट जिनके दिमाग में भन्नाट आइडिया है और उनको ओपनिंग नहीं मिलता है. तो अनफॉर्चुनेटली द डोर इज ओनली ओपन फॉर हाईली मेरिटोरियस रिसर्चर. वो मैं आगे चल के बताऊंगा इसको हमको कैसा टैकल करना है. देन द सेकंड रिव्यू क्राइटेरिया जो होता है कि हर एजेंसी उसकी एक प्रायोरिटी होती है. वो जब भी रिसर्च का प्रपोजल लॉन्च करते हैं तो उनकी कुछ प्रायोरिटी होती है कि हम ये एरिया में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये सेक्टर में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये थीम पे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. तो हमारा उनके प्रायोरिटी से प्रपोजल मिलना चाहिए. ऑल्दो वी आर इन देयर थीमेटिक एरिया, बट से देयर प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स. से रोबोटिक अगर थीमेटिक एरिया है बट उनका प्रायोरिटी है कि रोबोटिक फॉर हैंडीकैप पीपल, और हमारा प्रपोजल अगर उसमें नहीं आता होगा तो शायद हमको बैक एंड में रखा जाएगा. ये डिस्क्लोज नहीं होता है कभी. देन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल, जो मैंने साइंटिफिक मेरिट बोला था ना, एक्चुअली फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन इज अ PhD इज अ मस्ट. सेकंड क्राइटेरिया इज दैट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जिसको लीड इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है, दैट पर्सन शुड बी ऑफ अ प्रोफेसर लेवल. आप और हम AP लेवल पे आएंगे. थर्डली जो होता है कि जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसको उस थीमेटिक एरिया में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर चाहिए. सिग्निफिकेंट एक्सपोजर का मतलब है 3 चीजें. अगर वो साइंस का है तो उसके पास कोई पेटेंट चाहिए, उसके मिनिमम 3
हाई क्वालिटी पेपर पब्लिश हुए चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, राइट। एंड देयर मास्टर डिग्री एंड देयर बैचलर डिग्री ऑल्सो स्क्रूटिनाइज कि वाकई में ये एकेडमिकली सुपीरियर है क्या। फोर्थ जो देखा जाता है वो देखा जाता है प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या होता है, आपको जब कोई 8 लाख 10 लाख 15 लाख देता है काम करने के लिए, तो उनका डर ये होता है कि वो सही तय समय सीमा में सही बजट पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर कॉस्ट एस्केलेशन होता है और समय की बर्बादी होती है। सो दे एक्सपेक्ट द रिसर्चर टू हैव demonstrated in the proposal how they are going to plan and administer the entire research project। जैसा कल के सेशन में हमने देखा था, रिसर्च का बेसिक जो नेचर है प्लानिंग, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज। और वो हम अपने थीसिस में नहीं दिखा सकते, वो एक्सपेक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी से कि आप उन राहों पे काम करोगे। यहाँ पर जो कि आपके पास 6-8 महीने का ही समय होता है, तो एम्फोसिस दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड में आपका प्रोजेक्ट बिना हिचकिचाए होना चाहिए और आपको प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स आपके प्रपोजल में देने पड़ते हैं। अब क्या होता है, जो रिव्यूअर होते हैं, मतलब एजेंसी क्या करती है, एक बार प्रपोजल के लिए एडवर्टीजमेंट दे दिया और से 10-15 दिन का टाइम दिया और 10-15 दिन में मानो उनके पास 4-5 हजार प्रपोजल आ गए पूरे हिंदुस्तान से। सो दे अपॉइंट दी रिव्यू कमिटी, 3 या 5 लोग, जनरली 3 लोग होते, ज्यादा लोग नहीं होते। दे अपॉइंट 3-4-5 पीपल टू रिव्यू ऑल दोस 4-5 हजार प्रपोजल एंड दे आर गिवन दी इवेल्युएशन क्राइटेरिया, हाउ दे आर गोइंग टू इवेल्युएट। तो सबसे पहले आपका प्रपोजल वो उठाकर देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रपोजल। जैसे कल मैंने आपको बोला था कि रिसर्च ये रिलीवेंट होना चाहिए, टाइम पीरियड के हिसाब से रिलीवेंट होना चाहिए, और अगर उसका अप्लीकेशन बहुत लाइकली हो सकता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो दे लुक एट दिस स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, व्हाट इज द वीकनेस, can weakness become the threat and ultimately damage the strength of your proposal। qualification of personnel, जैसे मैंने बोला कि आपको राइट फ्रॉम योर बैचलर डिग्री टू योर पीएचडी, पीएचडी में तो परसेंटेज मार्क नहीं होते, यू हैव टू बी अमंग द टॉप 5%। ये अनरिटन रूल है, मतलब मैं जिस टीम में काम करता हूँ वो हमारे तीनों के तीनों टीम मेंबर इंक्लूडिंग मी, we are at the top of our academic qualification right from the bachelor degree। So qualification matter both academic as well as your research, आपने कितना पब्लिकेशन किया है, किस टाइप के काम किए। ये थोड़े इनिशियल 1-2 प्रोजेक्ट मिलने के लिए आपको दिक्कत हो जाती है। जैसे कोई अगर नया कैंडिडेट एमबीए करके जॉब अप्लाई करने जाता है तो उसको पूछते हैं भैया एक्सपीरियंस है क्या। अब उसको कोई तो पहले जॉब देवे तो उसको एक्सपीरियंस आएगा। इसमें भी वैसे ही होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस 1-2 प्रोजेक्ट में आ गया तो फिर आपका थोड़ा क्वालिफिकेशन को अनदेखा तो नहीं कहूंगा, उसका थोड़ा वेटेज कम किया जाता है कि इट्स ओके, इसने काम किया है और ये काम कर पाएगा। एंड देन द लास्ट वन विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब क्या होता है, जैसे कल मैंने आपको बोला कि देर इज नो सच थिंग एज 100%। Even while conducting our PhD research, we are talking about max 95% probability कि मैं मेरे हाइपोथेसिस के आसपास पहुंचूंगा। ये रिसर्च प्रोजेक्ट करते समय जो एंटिसिपेटेड प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज इन द नेबरहुड ऑफ 75 to 82%। दैट्स इट, नो लेस देन दैट एंड नो मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी 95% डाल दोगे, हो भी सकता है, मैं यही नहीं कहता हूं कि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, तो
आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू बिलीव दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी अगर 50% डाली तो आपको फिर पूछा जाएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 50-50% ही चांस है। तो रीजनेबल प्रोबेबिलिटी जो डालना है, ये स्पेशली साइंस के लोगों के लिए है। दे हैव टू पुट इट एनीवेयर बिटवीन 75 to 80, 84, 85 मैक्स, नो मोर देन दैट। ठीक है। देन अब ये जो रिव्यूअर होते हैं ना, हम्म, इनको स्कोर दिया जाता है कि आप जो प्रपोजल देखोगे, प्रपोजल के हर एक सेक्शन पे आपको कुछ मार्क देने होते हैं। तो वो एक रिव्यूअर एक पढ़ेगा, वो सेक्शन पे मार्क देगा, उसका टोटल वो रख देगा। वही प्रपोजल दूसरा तीसरा रिव्यूअर पढ़ेगा और उसका एक ग्रुप स्कोर बनाएंगे। मतलब तीनों रिव्यूअर का एक एवरेज आएगा। ठीक है। एक बार वो एवरेज आया तो उनका कट ऑफ क्राइटेरिया होता है कि मान लो 100 में से अगर आपको 75 एवरेज आता है तो 75 विल बी द क्राइटेरिया। ये डिस्क्लोज नहीं करते वो लोग, वो उनका क्राइटेरिया होता है कि 75 के ऊपर के लिए हम आगे लेके चलेंगे, 75 के नीचे वाले वी विल डिस्कार्ड इट आउटराइटली। व्हाट रिव्यूअर्स आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉर प्रपोजल विच दे कैन चैंपियन। मतलब ऐसे प्रपोजल जिसको वो फंड कर सकते हैं और उसको आगे चल के रियलिटी में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल अदर्स आर आउटराइटली डिसमिस्ड। लॉजिकली रिटर्न प्रपोजल मेक रिव्यू प्रोसेस वेरी इजी। अगर फंडिंग एजेंसी ने आपको प्रपोजल लिखने का कोई फॉर्मेट दिया नहीं है तो रिसर्चर को अपना खुद का फॉर्मेट, जस्ट लाइक योर सिनॉप्सिस, ये प्रपोजल इज जस्ट लाइक योर सिनॉप्सिस बट इट इज हाफ द साइज ऑफ योर पीएचडी सिनॉप्सिस। अगर आपका पीएचडी का सिनॉप्सिस 30, 40, 50 पन्ने का है तो ये नो मोर देन 14-15 पन्ने का होता ही है। ठीक है ना। सो यू हैव टू राइट द प्रपोजल इन अ वेरी वेरी लॉजिकल वे। लॉजिकल वे का मतलब जो कल मैंने आपको समझाया, तर्क, म्हणजे वाचणाऱ्याला पहिल्या ओळीपासून शेवटच्या ओळीपर्यंत तुम्हाला एक्झॅक्ट काय म्हणायचं आहे हे तंतोतंत कळेल, त्याला तर्कशुद्ध लिहिण्याचा प्रकार म्हणतात, है ना। तो आपको प्रपोजल लिखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी के बाद वो जब आप किसी थर्ड पार्टी को दोगे और उसको बोलेंगे कि सर आप इसको पढ़ के देखो और आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताओ, और उनका ओपिनियन लेके अगर आपको पता चलेगा कि हाँ ये तीसरे को समझ में आ रहा है तो आपका रिव्यू प्रोसेस अच्छा होगा। अब मेरा एक बॉस था, गोरा था, वो मेरे को हमेशा ये बोलता था कि निखिल हम जो लिखते हैं वो हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए लिख रहे हैं हम, तो उनको समझ में आना चाहिए ऐसा हमें लिखना है। आपको समझ में आता है ये तो दुनिया को मालूम है, बट उनको समझ में आना चाहिए। तो प्रपोजल लिखते समय भी आपको उनके एंगल से लिखना है कि उनका रिव्यू प्रोसेस इजी होगा। अगर आपने रिव्यूअर को आपका प्रपोजल समझने में हार्ड वर्क करने का मौका दिया तो आपका प्रपोजल वो एक दो बार पन्ने आगे पीछे करके देखेगा, वो बोलेगा भाऊ मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसने क्या लिखा है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैसे। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड इट दे विल थ्रो योर प्रपोजल इनटू डस्टबिन। ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होती है। मेनी अ टाइम हमने ये देखा है कि हाउ यू राइट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जो पहले स्लाइड पे मैंने बोला ना पैकेजिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I do not have any doubt about your idea, but can you present that idea? If you can present it in a very well manner, then I will look into it. Otherwise, if you can't present it, then how should I expect that I'm knowing what is going in your mind, right? So do not let the reviewer work very hard. It is just like couple of years ago, I used to go to check the MBA answer sheets in certain university. तो वो कैंडिडेट वो
ऑप्शन रहते हैं हमारे एमबीए के एग्जाम में, अटेंड दिस और दिस, उसमें और होता है अटेंड एनी 7। तो वो कैंडिडेट जब आंसर शीट उसकी खोलते हैं तो पहला वो अटेम्प्ट करता है 5C, दूसरा अटेम्प्ट करता है 2A, फिर अटेम्प्ट करता है 3A, फिर अटेम्प्ट करता है 6B। तो मार्क देते वक्त एग्जामिनर जो होता है उसको बहुत आगे पीछे करना पड़ता है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। तो वी डोंट एक्सपेक्ट कैंडिडेट टू राइट फ्रॉम A to Z, पर ये होता है, त्रास हो तो पेपर पास करना। हाँ? तो फिर उसमें वो पार्टी का मूड ये हो जाता है और फिर उसका वैल्यूएशन प्रोसेस पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। इसीलिए आप जब प्रपोजल लिखोगे तो ऐसा लिखो कि सामने वाले को वो आसानी से समझ में आएगा। Among the entire proposal, the most important aspect is the summary or abstract. Now, unlike the PhD thesis or unlike the research paper that you publish, मुझे नहीं मालूम नागपुर यूनिवर्सिटी में एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी देनी पड़ती है क्या, पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि आपका जो थीसिस होता है, आपका एक पहला पेज, उसका वो टाइटल हो गया, गाइड का नाम हो गया, फिर गाइड का सर्टिफिकेशन, आपका डिक्लेरेशन, और इमीडिएटली आपका वो टेबल ऑफ कंटेंट फिगर, वो सब होने के बाद एक पेज ऐड करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं उसको, थीसिस की। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये डालना जरूरी है तो आपको भी थीसिस में वो एग्जीक्यूटिव समरी डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो मत डालिए। बट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट द एब्स्ट्रॅक्ट इज अ मस्ट, आणि हा एब्स्ट्रॅक्ट 5 ते 6 ओळींपेक्षा जास्ती नको। वर्स्ट कम वर्स्ट, बहुत ही ज्यादा आपने किया तो हाफ A4 पेज, दैट इज टू लॉन्ग, नोबडी इज गोइंग टू रीड दैट लॉन्ग। वो एक पैरा बोलो या 1/4 ऑफ A4 पेज, ये सबसे ऑप्टिमम साइज एब्स्ट्रैक्ट का होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट में क्या आना चाहिए? व्हाट इज द इसेंस ऑफ योर प्रपोजल? इट मस्ट बी वेरी क्लियर, कन्साइज, वेल आर्टिक्युलेटेड अँड लॉजिकल। म्हणजे तुमच्या संकल्पनेपासनं तर त्याच्या कंप्लिशन पर्यंत हे सगळं तुम्हाला 4 ते 5 मॅक्सिमम 6 ओळीत लिहायचं आहे, आणि हा सगळ्यात डिफिकल्ट जॉब आहे बरं का। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। म्हणजे मला सुद्धा लिहायला 2-3 वर्ष लागली प्रॅक्टिस करायला। आता मी 60-70% ऍबस्ट्रॅक्ट व्यवस्थित लिहू शकतो। फॉर्च्युनेटली आमच्या टीम मध्ये एक वर्ल्ड बँकेचे साहेब आहेत रिटायर्ड, ते ऍबस्ट्रॅक्ट लिहिण्याचे किंग आहेत ते। सो शिकून शिकून त्याला वेळ लागतो, पण एक 5-6 वर्षात यू कैन बिकम द मास्टर, क्योंकि 15-16 पन्ने का आपको 4 लाइन में अगर कुछ लिख के देना होगा ना, तो वो बहुत क्या बोलते ट्रबलसम जॉब होता है। यू हैव टू बी वेरी what you call correct on what you are putting forward. Why? Because this is the only section every reviewer will read. प्रपोजल में कैसा रहता है ना, फ्रंट पेज पे आपका टाइटल और टीम मेंबर के नाम रहते हैं, सेकंड पेज पे रहता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, और थर्ड पेज से लेके आपका 12, 13, 14, 15 पन्ने का प्रपोजल रहता है। तो वो पहला पेज पढ़ेगा। कई बार पहले पेज पे ही आपको 5-5 लाइन में सबका बायोडेटा देना पड़ता है, या सेपरेट मांगते हैं वो लोग। वो एक बार उनका हो गया, ओके हो गया, तो फिर वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। अगर उसको एब्स्ट्रॅक्ट समझ में नहीं आया तो तुमचं प्रपोजल तिथेच संपलं, तो पुढचं पान पलटवणारच नाही। वो पलटाएगा नहीं आगे का पन्ना। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सो दैट you will able to write it and explain to the third party what exactly you are going to do। याच्यावर निश्चित काम करावं लागतं। कई बार आरए से जो दिया जाता है या फिर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो दिया जाता है गाइडलाइन में, उसके हिसाब से प्रपोजल लिखिए। अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, जैसे कि आप यूजीसी मेजर माइनर देखिए, आईसीएसएसआर देखिए,
कुछ टाटा इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया जाता है, आपको उसमें फिल करना पडता है. वो होता है तो रिव्ह्यूअरला काही त्रास होत नाही, कारण सगळ्यांचे फॉर्मॅट सारखे असतात. पण काही एजन्सीमध्ये फॉर्मॅट नसतात. हं? काही म्हणण्यापेक्षा मोस्ट, आय विल से, मोस्ट एजन्सी डू नॉट गिव्ह एनी फॉर्मॅट. And that's where your skill to write proposal becomes extremely important. जैसे आपके सिनॉप्सिस में आपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन लिखा होगा, चैप्टर 2 लिटरेचर लिखा होगा, चैप्टर 3 मेथड लिखा होगा और बाकी कुछ लिखा होगा, एग्जैक्टली वैसा ही इसमें लिखना पड़ता है. ओनली थिंग, इसको चैप्टराइज नहीं करने का, इंट्रोडक्शन A4 का आधा पेज. उसके बाद इमीडिएटली आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, why you are taking this particular problem as your statement. उसके 7-8 लाइन लिखने के बाद इमीडिएटली लिटरेचर में, देन आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपका मेथड, आपके पोटेंशियल पिटफॉल, आपका बजट, आपका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, आपका वर्क प्लान, डन, प्रपोजल संपला. तर इट इज क्वाइट डिफरेंट देन दी सिनॉप्सिस दैट वी राइट. मुझे नहीं लगता कि सिनॉप्सिस में कोई भी कैंडिडेट बजट का एस्टिमेट देता है या वर्क प्लान देता है, ये अभी मैंडेटरी नहीं है. गाइडलाइंस फॉर यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च स्टिल आर वेरी लीनियंट. आराम से आपको वो मौका देते हैं कि आप काम करो, बट इन सब चीजों में the guidelines are very stringent, and because there is a money involved and also risk involved, that so it is not possible that all projects become successful. Probably 5, 10, 15, 20% project fail भी होते होंगे, and there is a monetary loss as well as the time loss. तो अगर फॉर्मेट दिया हुआ है, do it in a format. कई बार वो रिव्यू कमेटी को पता चलता है कि इसका हाइपोथेसिस या इसका ऑब्जेक्टिव इज वेरी एम्बिशियस, ये हो नहीं पाएगा, ऐसा उसको लगता है. आपको तो लगता है हो जाएगा, बट उनको अगर लगा कि इट इज वेरी ओवर रीचिंग, देन दे विल प्रोबेबली थिंक अबाउट इट. देन अब यहां से आपका पीएचडी सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल 180 डिग्री अपोजिट होता है. आपको हाइपोथेसिस जो आप टेस्ट करने वाले हो, उसके लिए एम या ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है. व्हाई रिसर्चर वांटेड टू टेस्ट ओनली दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस. तो जैसे आपने आपके सिनॉप्सिस में 1, 2, 3, 4 हाइपोथेसिस लिखे होंगे, वो सिनॉप्सिस में अलाउड है. इसमें आपने अगर हाइपोथेसिस लिखा तो उसके ऊपर या उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है व्हाई, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट दिस, व्हाई यू थिंक this can be tested. Then methodology associated with timeline. कल हमने रिसर्च मेथड या रिसर्च डिजाइन की बात की. पीएचडी में आपको टाइमलाइन कोई मांगता नहीं है. आपको मेथड अगर आपके सिनॉप्सिस में होगी, अब मुझे याद नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेथड डालना पड़ता है, बट जनरली आप सैंपल एम्पल डालते आपके सिनॉप्सिस में, कितना सैंपल होगा, डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे. मेथड पर्टिकुलर एज सच बहुत कम लोग डिटेल में डालते हैं. हियर यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक मेथड विथ विच यू विल कंडक्ट द रिसर्च, और उस मेथड के लिए कितना समय लगेगा वो आपको देना पड़ता है. जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मुझे नागपुर से अमरावती अगर कार से जाना है तो 2.5 घंटा, पैदल जाना है तो 25 घंटा, ट्रेन से जाना है तो बडनेरा, बडनेरा से अमरावती 5 घंटा, बस से 4.5 घंटा. सो एवरी मेथड विल हैव अ डिफरेंट टाइमलाइन. तो आप जो मेथड प्रपोज कर रहे हो उसके साथ हमें उसका टाइम शेड्यूल देना पड़ता है कि ये कितने महीने में, कितने हफ्ते में कंप्लीट होगा. देन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट, जिसको हम प्रोबेबल आउटकम. मुझे पता नहीं कि नागपुर यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी है क्या एक्सपेक्टेड आउटकम या प्रोबेबल आउटकम सिनॉप्सिस में, बट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज व्हिच आई विजिट, वहां पे मैंडेटरी है कि आपके सिनॉप्सिस और थीसिस में दोनों में भी ये चाहिए. तो वो एक अच्छा है, बिकॉज as the research comes to an end, the candidate must be familiar with what are the expected outcome,
what he or she has envisaged in the synopsis. Then वो जो आपका रिव्यू करने वाला बैठा हुआ है, उसको 2-3 चीजों से आपको कन्विंस कराने का है. सबसे पहला है कि आपने एक इवैल्यूएशन प्लान आप जो देते हो, क्या होता है कई बार ये रिसर्च प्रपोजल में आपको फोर्टनाइटली मॉनिटरिंग करना पडता है, अपने आप कुछ करना पडता है. मी त्या रस्त्यावर व्यवस्थित चालू आहे का आणि त्याचं रिपोर्टिंग करावं लागतं. तर त्याला इव्हॅल्युएशन प्लॅन म्हणतात, मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन, M&E प्लॅन म्हणतात त्याला. त्याला हे कळलं पाहिजे रिव्ह्यूअरला की तुम्ही जो M&E प्लॅन दिलेला आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ट्रॅकवर राहाल आणि तुमचा रिसर्च प्रोजेक्ट हाँ सक्सेसफुली कंप्लीट होईल. उसको वो कन्विंस होना चाहिए. सेकंड, प्रोबेबिलिटी जो मैंने बोला, आपने अगर 90% डाली, 95% डाली, तो वो आपको डेफिनेटली पूछेगा ये क्यों. आपने रीजनेबल डाली, इट इज ओके, द सक्सेस इज एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी का. फिर उसके बाद एक स्टैंप रहता है लाल रंग का, वो रबर स्टैंप आपके प्रपोजल पे लगाता है, नीड्स टू बी फंडेड. और एक बार उसका ठप्पा लग गया कि फिर आपको इंटीमेट किया जाता है. कई बार मैं नहीं बोलूंगा, ओकेजनली वो आपको बुलाते हैं, आपके चेहरे वेरे देखना चाहते और बाकी लोगों से भी इंटरैक्ट कराना चाहते, आपसे 15 मिनट का प्रेजेंटेशन मांगते और बोलते घर जाओ और काम चालू करो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं बुलाते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया, तो वो आपका स्काइप पे एखादा छोटा सा फोन कॉल देते, कोई डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर कर लेते हैं, देन दे गिव यू द ग्रीन सिग्नल इमीडिएटली कि आप जाके काम करो और 180 डेज 270 डेज में आपको आपका काम सबमिट करना है अलॉन्ग विद दी गाईडलाईन जो भी दिया गया है. रिपोर्टिंग फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग होतं त्याच्यामध्ये. जसं तुम्ही तुमच्या PhDचा 6 महिन्यांनी किंवा 1 वर्षात काहीतरी काय प्रोग्रेस रिपोर्ट देता, तर इथे आपल्याला 15 दिवसात प्रोग्रेस रिपोर्ट त्यांना द्यावा लागतो. अब ये सब करना कैसे. अब जो बजट का पार्ट रहता है, जो मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ क्योंकि मेरा मेजर काम फाइनेंस में हुआ है, तो आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का जब बजट बनाते हो तो आपको सबसे पहले टाइमलाइन का इस्तेमाल करना आना चाहिए. से यूजुअली एक प्रोजेक्ट टीम में 3 लोग होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 4 लोग. 3 या 4 क्यों? क्योंकि पहला जो होगा वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, प्रोफेसर लेवल का, किसी का HOD होगा किसी डिपार्टमेंट का, या डीन होगा, या कोणत्या संस्थेचे ते संचालक वगैरे असतील आणि त्यांना त्या विषयामध्ये मास्टरी हवी बरं का, नुसतं टायटल चालत नाही. ते झाले. मग सेकंड लेवलवर तुम्ही आणि थर्ड लेवलवर एक रिसर्च एसोसिएट जो अपॉइंटमेंट लेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ये देखेगा वो देखेगा, ऐसा. तो ये कैसा करने का, अभी आपको जो काम करने का है 6 या 8 या 9 महीने में, तो से प्रोफेसर साहब है, PI प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, वो क्या क्या काम करेंगे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखना पड़ता है. वो काम कितने घंटे का होगा, से फॉर एग्जांपल अगर वो 200 घंटे का काम होगा और प्रोफेसर का रेट होता है 2000 रुपया 1 घंटे का, तो आपको आखिरी के कॉलम में डालना है 4 लाख रुपए प्रोफेसर के. सेकंड लेवल पे आएंगे आप. आपके लेवल पे मैक्सिमम काम किया जाएगा, अराउंड 60 to 70% काम आपके लेवल पे होगा, AP लेवल पे. काय काय कराल त्याचा ब्यौरा आणि किती तास. समजा तुम्ही म्हटलं की तुम्ही 500 तास काम करणार आहे, 500 मैन आवर्स, मतलब आपका रेट रहेगा 750 से लेके 900 रुपए तक, तो अपन 900 रुपए पकड़ते. सो 500 इंटू 900, 4.5 लाख रुपए आपके. और जो तीसरा रहेगा एसोसिएट, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ये देखेगा वो देखेगा, वो अगर 400 घंटे काम कर रहा है तो उसका रेट रहेगा 500 रुपए पर आवर, तो उसके हो गए 2 लाख. ही झाली बेरीज मॅन पॉवरची.
मग ज्या संस्थेमधनं तुम्ही रिसर्च प्रोजेक्ट करता आहात त्या संस्थेला 10% मानधन द्यावं लागतं. त्याला इन्स्टिट्यूशन ओव्हरहेड म्हणतात. हे सगळीकडे द्यावं लागतं, जगात सगळीकडे. तो वो 10% जो आपका फाइनल टोटल आएगा उसका 10% इंस्टीट्यूशन ओवरहेड है. फिर जो बचा हुआ है आपका ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन या कंज्यूमेबल या लेबोरेटरी इक्विपमेंट, हाँ, ये सब हार्डवेयर में या ट्रैवलिंग में अदर एक्सपेंसेस में जाएगा. फिर प्रिंटिंग बाइंडिंग हो जाएगा. ऐसा करके आपको एक पूरा बजट देना पड़ता है. ठीक है. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अनलाइक द यूजीसी और टू सर्टेन एक्सटेंट आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट, जहां पर आप लोग जर्नल खरीदते, किताब खरीदते, कंप्यूटर का टोनर खरीदते, प्रिंटर खरीदते, इसमें ये सब अलाउड नहीं होता. आप आपका लॅपटॉप, आपका प्रिंटर आपके पास होना चाहिए. याचे पैसे ते देत नाहीत. हा, तुम्ही रिपोर्ट जर प्रिंट आणि बाइंड करून देत असाल त्याचे पैसे मिळतात तुम्हाला, नो डाउट. पण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साठी अजिबात पैसे दिए जात नाही. हाँ, अगर आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का है, अगर आपको मालूम है कि आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आती है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए अहम है, आप डाल दीजिए. आपको बाकायदा टू एंड फ्रो एयर फेयर दिया जाएगा, आपका रहने का पैसा दिया जाएगा और कॉन्फ्रेंस की जो भी फी होगी वो दी जाएगी. तो वो दिया जाता है. तो बजट आपको रीजनेबल रखने का है. कई बार मैंने देखा है इंडिया में लोग पैसे कमाने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, विच इज रॉन्ग. वो 10 की चीज में भाव 20 रुपए का लगा देते हैं. तसं नसतं. आपका सब कुछ अच्छा है, ऍब्स्ट्रॅक्ट अच्छा है, प्रपोजल लॉजिकली लिखा है, आइडिया फंटास्टिक है, पण तुम्ही बजेट खूप अनरिजनेबल बनवलाय ना, तर ते तुम्हाला असंच रिजेक्ट करतात. उनको समझ में आता है कि ये इनको, ये पार्टी पैसे के पीछे लगी हुई है, इसने प्रपोजल भी कहीं से बना के लाया हुआ होगा. त्याच्यामुळे अनरिजनेबल बजेट टाकायचे नाही. रीजनेबल टाकायचे आणि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये इसका ब्यौरा आपको देना पड़ता है. अगर गाइडलाइन दी गई है बजट की, तो वो उसके हिसाब से आपको बजट बनाने का है. जैसे आप अगर यूजीसी की गाइडलाइन देखोगे ना, या एआईसीटी की या इवन आईसीसीएसआर की, उनकी गाइडलाइन दी रहती कि फील्ड वर्क 20% रहेगा, इंस्टीट्यूशन ओवरहेड 10%, मिसलिनियस 15%, बुक्स, जर्नल, अदर थिंग कंझ्युमेबल 10%, प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर 20%, असो को इन्व्हेस्टिगेटर 25%, असं दिलं असतं. तर मग त्याच्यामध्ये ते बजेट बसवावं लागतं. असं दिलं असेल तर तुम्हाला बजेट बनवणं सोपं जाईल. पण नसेल दिलं, जे दिलं जात नाही बहुतेकदा, तर वो आपको रीजनेबल हिसाब से आपका बजट बनाने का है, ताकि उनको, हमारे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला कि आपका बजट बहुत कंजूस तरीके से बनाया, तो उन्होंने हमको 10% बजट बढ़ा के दिया. अच्छा, और एक चीज आपको याद रखनी की अभी जीएसटी वगैरह आ गया है. तो आप इंस्टीट्यूट के तरफ से ही ये प्रपोजल डाल सकते हैं. म्हणजे संस्था वैयक्तिकरित्या हे मिळत नाही बरं का. तर तुमचं कॉलेज असेल, तुमचं डिपार्टमेंट असेल किंवा युनिव्हर्सिटी काय जे असेल, किंवा तुमचं स्वतःची संस्था असेल, तो ये जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर रहते उसके कागजात जाचे जाते हैं. विद्यापीठातनं टाकणार असेल तर आपल्याला सगळं ते मिळतं, फायनान्स डिपार्टमेंट मधनं ते कागदपत्र मिळतात. तो वो एक चीज याद रखने का है, वो भी आपको आजकल वो पूछते कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो एक अलग से कॉलम में नीचे डालना पड़ता है. ये अभी रिसेंट चेंजेस आए जब से जीएसटी लागू हुआ तब से. उसके पहले केवल सर्विस टैक्स था जो 12.5 या 6.5 जो भी होगा. अब ये जीएसटी हो गया, डालना पड़ता है, वो रिएम्बर्समेंट आपको हो जाती है उसकी. क्लियर. अब जो मैंने बोला कि अभी हमारी टीम कैसे बनाने का, सबसे पहले हमको एक पीआई लगेगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जिसका सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज है उस एरिया में, जो एरिया का टॉपिक आपने रिसर्च प्रपोजल के नाम पे भेजा हुआ है. सेकंड लेवल पे आप आओगे, यू विल बी हियर with a passing familiarity of the subject matter. And third is an excellent writer who can write it, because writing is a very difficult job. Anybody who is very good at drafting yala म्हणतात, that will help. How to start? Typically
जून के महीने में एडवर्टीजमेंट आती है, जून जुलाई, वर्स्ट कम वर्स्ट अगस्त, बट 15 अगस्त के पहले और बारिश चालू होने के वक्त 7 जून से चालू होता है, मानसून के टाइम से इनकी ऐड आ जाती है। तो अभी हम है 16 मार्च, अभी 3 मार्च एप्रिल मई जून 3 महिन्यापेक्षा कमी वेळ, म्हणजे मोटा मोटी 3 महीना लगेगा यहाँ से। तो अभी इस साल अगर आपको करना होगा तो आपको फास्ट सोचना पड़ेगा, नहीं तो टिपिकली आपको जनवरी को सोचने का, 6 मंथ पहले, T-6 आइडिया जो आपके दिमाग में होगी वो आपको डिस्कस करने का है ऐसे शख्स के साथ जिसको आप भरोसा करते हो और जो आपको हेल्प करेगा जेन्युइनली, जो आपको मोटिवेट करेगा। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो आपकी आइडिया लेके दूसरे को दे देगा, ऐसे भी लोग रहते हैं। सो वट एवर इज इन योर ब्रेन और माइंड, यू मस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। ओके, इफ यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, अभी यहाँ से साइंस वालों को बहुत फायदा होता है। अगर ऑलरेडी आप कुछ काम कर रहे हो, आपके पास एक आधा प्रोटोटाइप है या आपने एक आधा मॉडल बनाया हुआ है, तो आप इमीडिएटली एक रिसर्च पेपर राइट करो और उस पेपर में वो प्रोटोटाइप की प्रोडक्टिविटी बताओ और आपके प्रपोजल में आप ये भी बताओ कि हाउ यू विल टेक दिस फ्रॉम आइडिया टू दी कंप्लीट पब्लिश कंप्लीशन। त्याच्यामुळे बरेचदा काय होतं, कई लोग जो साइंस वाले लोग होते हैं ना, वो लोग अपने रिसर्च प्रपोजल के पीछे एक पेपर लगा देते हैं उनका, तो उनको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलता है क्योंकि वो एजेंसी को पता चल जाता है अरे यार ये तो ऑलरेडी ट्रू है करके और इसने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो अपन ने अगर इसको थोड़ा पैसा दिया तो इसका काम पूरा हो जाएगा। तो साइंस वाले को हमेशा हमेशा अपर हैंड होता है, ऑलवेज। तो आप अगर साइंस के हो तो आप T-6 के पहले आपके एक्सपेरिमेंट की आपको पेपर लगेगा, ये आप लिख नहीं सकते। यू मस्ट पब्लिश अ पेपर इन अ रेप्युटेड जर्नल। वो जर्नल तभी, हे तेवढं सोपं नाहीये, पण हे जर झालं तर मग तुमचं मोर दॅन 50% काम प्रपोजल इथेच संपतं एका पेपरवर। देन जो आप अगर एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, तो जैसे कल मेरे को किसी ने पूछा कि सर एक्सपेरिमेंट कितने बार करने का, 1 बार या 100 बार, तो यहाँ पर भी कंपेयर टू योर PhD थीसिस the approach is very different for experimental based research। आपको हर एक सेक्शन के पहले एम लिखना पड़ता है, why you are taking this particular section in your experiment, उसका एम। देन उस एम के हिसाब से आपको हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है। अगर ये मेरा एम है तो ये मेरा हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाइपोथेसिस लिखने के बाद आपको वही एम आपने क्यों लिया ये जस्टिफाई करना पड़ता है। राइट, ये डिफरेंट है कंपेयर टू आपका PhD सिनॉप्सिस। PhD सिनॉप्सिस में आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ पे हर स्टेप पे आपको दिखाना पड़ता है कि यही क्यों। उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू सबमिट योर प्लान फॉर द एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से करोगे त्याचा एक डिटेल प्लॅन त्यांना द्यावा लागतो। देन what are the expected outcome, what do you expect at the end of your experiment, what will happen, वो भी आपको प्रपोजल में डालना पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपके सभी ऑप्शन फेल हो गए तो आपको ऑल्टरनेटिव प्लान मतलब प्लान बी ये देना पड़ता है। अगर आपने आपके प्रपोजल में प्लान बी नहीं डाला है, आपका प्रपोजल वैसे रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी बता रहे 74 to 84%। इसका मतलब 16 to 26% गलत हो सकता है, उसका प्लान बी मुझे देना पड़ता है अगर मैं एक्सपेरिमेंटल मॉडल अगर प्रपोज कर रहा हूं। राइट, क्लियर? देन अब हम देखेंगे, बजे 11:30, अब मैं आपको आधे घंटे में बताऊंगा हम अपने प्रपोजल को टॉप 10% में कैसे लाएंगे। among all of you, those who are keen to pursue the research even after completion of their PhD can certainly pay good attention. First and foremost,
इट हैज टू बी एन आउटस्टैंडिंग साइंस. ये थोड़ा साइंस के एंगल से भी मैंने बोला हूँ, बट इट इज समथिंग विच इज यूनिक, विच इज आउटस्टैंडिंग, है ना. इफ यू कैन डू इट, जैसे अगर आपने कल या परसों के पेपर में वो पूना में कोई कंपनी है, कौन सा, पापा जॉन पिज्जा, हाँ, पापा जॉन पिज्जा नाम की एक कंपनी है पूना में, वो डिलीवरी करते हैं. तो ये अभी पिछले महीने में जब पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो वो कंपनी के मालिक ने दिमाग दौड़ाया और उसने एक बाइसिकल बनाई है. वो कल या परसों के पेपर में आई थी, उसका फोटो ऑनलाइन. वो बाइसिकल मेरे ख्याल से 5 रुपए में 100 किलोमीटर चलती है पिज्जा डिलीवरी के लिए. तो उसको पूछा कि यार ये अचानक क्यों बना है, तो बोले हमारा पिज्जा होता है 200-300 रुपए का, और वो डिलीवरी का आदमी जाएगा और वापस आएगा, उसमें हमको पेट्रोल लगता है 100-150 रुपए का. तो अभी हमने ये बाइक बनाई है, साइकिल, बाइक मतलब साइकिल, जिससे कि वो उसकी टॉप स्पीड कुछ 40 या 45 किलोमीटर है. इससे इलेक्ट्रिक, अच्छे टायर वायर बड़े है, उसने वो बनाई है और उसके एम्प्लॉय वो देंगे. तो उसने बोला कि फिर मेरा पूरा पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा और मेरे को केवल 5 रुपए 100 किलोमीटर पे बिजली का खर्चा आएगा, विच इज नाइस. तर बरेचदा गरज इज दी, ज्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इनोवेशन. आपके पास अगर कोई आउटस्टैंडिंग आइडिया होगा तो वो आइडिया आप प्रपोजल में डाल सकते हैं. दुनिया में आप अगर देखोगे तो आइडिया की कहीं भी कमी नहीं है. देर आर n number of activities going even right now when we are talking. अभी आप देखिएगा हमारे फोन, हाँ, इनिशियली फोन आया, फिर फोन में कैमरा आया, हाँ, फिर वो फोन पे टच स्क्रीन आ गया, राइट. अभी हम पूरी टच की बात करते हैं. आता जो नवीन इंटरफेस येणार आहे म्हणजे 2 वर्षांतर 2024 म्हणतात ते ऑगस्ट, कि मैं केवल देखूंगा. अगर मैंने मेरा कॉन्टैक्ट बुक निकाला और मुझे प्रीति मैडम का नंबर देखा और मैंने केवल वो नाम को देखा, फोन लग जाएगा. आज के तारीख में हम क्या करते हैं, वो आईफोन में सीरी होता है, हम सीरी को बोलते हैं कॉल डॉक्टर प्रीति, तो वो कॉल कर देती, वॉइस एक्टिवेटेड कमांड है. आता ते फक्त आयबॉल ऍक्टिव्हेटेड करणार आहेत. म्हणजे तुम्हाला आता काहीच करायचं नाही, फक्त तुमच्या डोळ्यांनी तिथे बघायचं आहे आणि जे बघाल ते होईल. हाँ, मतलब इनडायरेक्टली वो सेंस करेगा की मुझे इनसे बात करनी है. तुमच्या मनातले विचार, आता ती एक्झॅक्ट टेक्नॉलॉजी काय ते मलाही माहित नाही, बट दॅट इज वेअर वी आर हेडिंग टू. दैट इज अगेन एन आउटस्टैंडिंग साइंस, राइट. अब मुझे बताइए, आपको मैं सवाल पूछता हूं, अगर मुझे आपको मार्स पे भेजना है, तो मुझे सबसे बड़ी चिंता क्या होगी, किसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, सांगा बरं. व्हाट यू विल थिंक फर्स्ट एज ए प्रायोरिटी. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन इज नॉट ए इश्यू. सांगा. Communication. The vessel in Communication which not a we are problem. sending. सॉरी. Vessel in which we are sending him on Mars. नो, इट इज नॉट ए प्रॉब्लेम. नाही, बताओ. Communication. नो आहे, कम्युनिकेशन आहे, नॉट ए इश्यू. Vehicle. हाँ? Vehicle. व्हीकल to नॉट ए travel? प्रॉब्लम. क्या क्या लेके जाना है बोले. जो भी उसको जरूरत की चीजें हो. टेक्नॉलॉजी तेही आहे, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. सांगा अजून, की विचार करा, रिसर्च Right करताना person to stand on Sir, Mars. we हाँ, Then water. water is So not a water- problem. Water is not a problem. Water actually बॉडी के Fuel. यूरिन, बॉडी के यूरिन को क्लीन करके वाटर देते हैं एस्ट्रोनॉट लोगों को. वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम. So training the people so as to adapt to the living conditions on Mars. नो 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 नो. Wait, तुम्हाला sir, कोणालाही desire नाही. or willingness, desiredness or his willingness.
नहीं, that is not a problem. सगळ्यात पहिला budget. प्रॉब्लेम, अभी रुको, Budget. no is not a problem, not a problem. सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा खाना। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी से हमें 2 साल मतलब 371 दिन, सॉरी 671 दिन प्रिसाइजली मार्स को जाने को लगते। 771, सॉरी 365 इंटू 2 तेवढे दिवस आम्हाला मार्सवर जायला लागतात आजच्या टेक्नॉलॉजीने। सो 2 साल का खाना, अगर 5 लोग भी गए तो 2 साल का खाना कितना होगा? अभी मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम है, इतना खाना हम लेके जा नहीं सकते रॉकेट में। इसका सॉल्यूशन क्या है? काय कराल तुम्ही? क्या करोगे अभी? रोबोट सेंड करेंगे। नहीं, अरे रोबोट तो भी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। मार्स हा खूप दूर आहे बरं का, बऱ्यापैकी दूर आहे आपल्यापासून हा। नाही, रोबोट अजून नाही पाठवले, आजच्या घटकेला तो ऑप्शन फिजिबल नाहीये। काय कराल? विचार करा। रॉ जे काय मी मटेरियल वी म्हणतो- कैन टेक द रॉ मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी और- ऑक्सीडाइज और So वहां जाके pills- मे बी सिंथेसाइज कर सकते हैं तो कुछ हाँ, खुद बना हाँ। सकते हैं। Who Pills. said pills? किसने बोला था? मनोज। यस सर। संकल्प कौन सी संकल्प? कौन सी पिल्स रे बाबा? सर, मल्टी विटामिन्स और जो भी है जो इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। हाँ, तो अभी जैसा संकल्प जी ने बोला, खैर मल्टीविटामिन तो नहीं है, अमेरिका में एक गोली बनाई गई है, पिल। वो इतनी अपने कॅप्सूल, आपला इंडेक्स फिंगरचं जे पहिलं मार्क असतं ना, एका कॅप्सूल सारखी ती दिसते। अपने बॉडी को सर्वाइव होने के लिए क्या लगता है? अपने को लगती कैलोरी, राइट? कैलोरी लगती। हम कैलोरी कैसे लेते? हम कार्बोहाइड्रेट खाते, शक्कर खाते, और बाकी हमारे मांसपेशियों के लिए हमें प्रोटीन लगता। आपण डाळ खातो, पाश्चिमात्य लोक मांसाहार घेतात। कार्बोहायड्रेट म्हणजे आपण पोळ्या, चपात्या, नान हे खातो। आणि मग आपल्या फळांमधनं तुम्हाला बाकीचे जे विटॅमिन असतात, दुधामधनं हे मिळतं आणि केळ्यामधनं पोटॅशियम मिळतं वगैरे वगैरे वगैरे। तो अपने बॉडी को जो बैलेंस डाइट बोलते हैं वो लगता है। हम केवल दाल चावल या केवल फलाहार लेके जिंदा नहीं रह सकते, मतलब रह सकते जिंदा, वो बैलेंस डाइट। सो इन यूएसए दे हैव डेवलप्ड अ पिल, that pill will provide you sufficient energy in terms of calorie। तो एक पिल सवेरे लो और एक पिल शाम को लो, आप काम कर सकते हो। आप काम कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? जो कि आपके पेट में कुछ नहीं गया तो पेट के बाहर भी कुछ नहीं आएगा, राइट? सो the entire pill will be consumed or it will result in the form of calories। और जैसा जैसा जो आदमी है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, दुबला है, जो भी होगा उसके हिसाब से उसको वो पिल दी जाएगी। ये हो गया अपना पहला प्रॉब्लेम सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लेम काय येईल माहिती का? जे आपल्या प्री पीएचडी मध्ये असे बरेच हुशार लोक असतात, बरेचदा मला याचे उत्तर मिळाले। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि जाने के लिए हमको 2 साल लग रहे और वहां पे हमको रहना भी पड़ेगा। अगर टेक ऑफ हो गए 17 मार्च को, हाँ, और 3 दिन बाद संकल्प हडकेने बोला, भाऊ मा पोट दुखून राहिला, चला जी परत, त्याले परत तर आणता येत नाही। या किसका बीपी हाई हो गया या किसको हार्ट फेल्यूर, आपको स्पेस में आप बीमार नहीं पड़ सकते। सर्दी खोकला काय, तुमचा पोट, पाय, हात, डोकं काही दुखलं नाही पाहिजे। याचं सोल्युशन काय हो आजारी न पडण्याचं? काय कराल तुम्ही? क्या करोगे? एंटीबायोटिक्स। नहीं, नॉट एंटीबायोटिक, नो नो। हाँ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे सर। कैसे बढ़ाएंगे? If we take the pure oxygen, ना, नहीं नहीं नहीं,
सॉल्यूशन बताओ ना, अगर आपको लगता है कि ये सीवियर बीमारियां हो सकती है किसी को भी, कितना भी आपने चेकअप कर लिया पर 2 साल में कोई ना कोई बीमार हो सकता है, वो मुझे अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है, उसका सॉल्यूशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी. हे खरं आहे बरं का. सायन्स जे आहे ना ते आजच्या पासून पुढे 20, 30, 40, 50 वर्ष पुढे बघणारं सायन्स पाहिजे. एक सिनेमा है गतका, GATTACA, आप देखो वो पिक्चर, अगर आपको साइंस से प्यार है ना, ये 1998 का पिक्चर है. तो ऐसी रूमर है, मुझे ये मालूम नहीं ये सच है कि झूठ है, बट ये मोर और लेस ये सच है कि अमेरिका ने 200 लड़के लड़कियां बनाए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब त्यांच्या बॉडी मधल्या सगळ्या डिसीजच्या जीन्स काढून टाकल्या आहेत. त्यांना सर्दी, खोकला, ताप, बीपी, शुगर कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि जीनी मॉडिफाई की है उनकी. हाँ, इनका जन्म हुआ है 2000 में, सन 2000 में अक्टूबर नवंबर के पास. इनकी आज की उम्र है 21 साल के, ये बच्चे हैं, लड़के लड़कियां. ये एक बहुत बड़े कैंपस में रहते हैं, 5, 6, 10, 20 हजार एकड़ का कैंपस है. ये दिखने को मेरे आप जैसे है. अगर मैंने इनको ब्लेड लगाया इनके हाथ पे तो इनके बॉडी में से भी खून आएगा, इनको जख्म होंगी, सब अपने जैसा है. इनको सिर्फ इनके माँ बाप से मिलने नहीं, मतलब दूर से मिलने दिया जाता है. इनको सब साइंस, इंजीनियरिंग सब सब पढ़ाया गया है और ये मार्स पे जाने वाले हैं. ये कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते. ऐसे 200 बच्चे हैं. आता खूप क्युरियोसिटी आहे की आता मला वाटते पुढच्या 3 वर्षात मार्सला कोणतरी जाणार आहे. तो अभी धीरे धीरे कभी अपने को पता चलेगा. तो ऐसा हो रहा है, जैसा अगर आप देखोगे ये स्टेम सेल थेरेपी वगैरह जो चल रही है, हाँ, मेरे को मालूम नहीं इंडिया में लीगल है कि इलीगल है. तो डिसीजेस, हे कोरोना काय हा अटॅकच करतोय ना आपल्या इम्युन सिस्टमवर. मग आपण जेनेटिकली मॉडिफाय का नहीं करू शकत त्याला. सो एनीवे, तो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे बनाए हैं जो बीमार नहीं पड़ते और वो लोग जाएंगे मार्स पे. मार्स तो फक्त पहिलं डेस्टिनेशन आहे. आपल्याला तर आपल्या गैलेक्सी मध्ये खूप दूर जायचं आहे. तो ये सब चीजें जो है, ये थिंकिंग, कल जो मैंने आपको पीपीटी पे बताया था ना आइंस्टाइन का इमेजिनेशन, इमेजिन क्या करना पड़ेगा मुझे, वो सब सोच वहां हो चुकी है. तो अगर आपको ऐसा कोई, मैं ये नहीं बोलता की तुम्ही एकदम आउटस्टँडिंग म्हणजे ते बनवा. आता मला सांगा बेसिक, एखाद्या गोष्टीवर धूल का बसते हो, बेसिक सांगा. एखादे चीज के ऊपर धूल क्यों जमा होती है, क्या वजह होती है उसकी? यूज में नहीं रहता इसलिए. यूज में नहीं रहता इसलिए. ओके, वेरी गुड. और सावर असते हैं. कोणती? वो एक्चुअली वो अट्रैक्ट करती है सर धूल. हाँ, क्या क्या रहता अट्रैक्ट करती मतलब क्या रहता? मीन्स जस्ट लाइक Stickiness. स्टिकीनेस नहीं. according to the science, I think when there is a friction, there is a generation of electrons. So this charged particle will attract the that is the dust particles. Okay, so you are partially correct and partially incorrect. The surface, any surface, is oppositely charged and the dust particle are oppositely charged. So if surface is positive and dust particles are charged negative, then they will attract. और इसीलिए किसी भी सरफेस के ऊपर धूल बने बैठेगी. अभी मुझे बताओ, आपने क्रॉम्पटन की एड देखी है टीवी पे? वो बोलते हैं ये पंखे पे धूल नहीं जमती. एड देखी होंगी ना आपने. या आप आपके कॉलेज में कभी जाते होंगे, आप जिस रूम में अभी बैठे हो वो पंखे के पत्ते के ऊपर भी धूल बैठी होगी. दैट इज बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन. नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स. जब क्रॉम्पटन वाले बोलते हैं
ये पंखे पे धूल नहीं बैठती, मतलब क्या किया होगा क्रॉम्पटन ने वो पंखे के पत्ते के साथ? काय केलं असेल? मतलब जो डस्ट पे चार्ज, डस्ट पे जो चार्ज, सेम हाँ। चार्ज को फैन की प्लेट्स पे बनाने की कोशिश करेगा कि वो डस्ट Yes. बिल्कुल बिल्कुल. So that is one explanation. So say if dust particles are charged positively, so I make the surface of my blade of my fan positively charged, so that positive will repel each other. This is one explanation. Huh? Second explanation is such that I will make the surface tension of the blade of the fan so high that no particle will get attracted. और इसी नोशन के ऊपर जर्मनी में एक पेंट बनाया गया. आप जब कार लेते हो शोरूम से पहले दिन, आपकी कार बहुत चमकने वाली कार होती है, ब्रांड न्यू कार होती है. धीरे धीरे धूप लग के, पाणी लग के, ये लग के वो खराब होता है उसका पेंट. तर त्यांनी असा पेंट बनवलाय की त्या पेंटला त्या कारच्या लाईफ एवढं, म्हणजे आपण 10 वर्ष जरी धरलं तो पेंट तसाच्या तसा राहतो. त्याच्यावर चिखल, माती, पक्षाची शी, धूळ कधीही अट्रैक्ट होत नहीं. उन्होंने उसका सरफेस टेंशन इतना बढ़ा दिया है, नथिंग गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट पेंट एंड दैट पेंट रिमेन्स एज इट इज. कमाल है कि नहीं, है ना? वैसे ही जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, हाँ, तो एक प्रिंसिपल होता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल, और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, जिसके लिए हम पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं. जापान में हाँ, एक ऐसा कपड़ा बनाया उन्होंने, टेक्सटाइल, सेल्फ क्लिनिंग. आता आपण पुरुष भारतातले जे घालतो शर्ट किंवा टी शर्ट, तर सगळ्यात खराब कुठं होतं? आपला कॉलर, आपल्या बगला, आणि जो फुल स्लीवचा शर्ट असेल तर जो कफलिंग, तिथे तो खराब होतो. इन्होंने सेल्फ क्लीनिंग फैब्रिक बनाया है. अगर वो फैब्रिक कमर्शियलाइज हो गया तो आपको सर्फ एक्सेल, डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आपोआप धुतलं आणि पाणी वाचेल आपलं. मुख्य म्हणजे आपलं पाणी वाचेल. तर ऐसा है, दुनिया में ऐसे कई सारे इनोवेशंस है. आपको वर्ल्ड वाइड लुकआउट लेने का है. दुनिया में सब हो रहा है. मैंने पिछले बैच को भी बताया था, ये 2019 का किस्सा है. मैं वो 3 या 4 बजे के चेन्नई के फ्लाइट के लिए नागपुर एयरपोर्ट पहुंचा. तो धूपकाले का टाइम था, बहुत लोग कम थे. तो मैं जो ऊपर जाके बैठा तो वहां पे ऑलरेडी 3 लोग बैठे थे, जिसमें का एक जापानीज था और 2 उसके साथ इंडियन लोग थे. तो मैं उनके आसपास जाके बैठा, तो वो जापानीज आदमी के पाव में एक ऐसा जूता था, वो दिखा रहा था उनको की त्यांनी पाय हलवल्याबद्दल, हलवला की त्या बुटाची लेस आपोआप निघायची, आणि तो पायात घातला आणि परत पाय हलवला की बुटाची लेस आपोआप टाइट व्हायची. अब मैं वो कार्यक्रम देख के मैं जरा हिल गया. मैंने कहा ये कैसा होता? तो उसने एक दूसरों के पाव में भी डाल के देखा, अगर किसी का पाव छोटा है, बड़ा है, तो वो लेस कम ज्यादा टाइट होगी. अब उसमें कोई ना कोई इनोवेशन तो होगा ही नहीं कि अभी आपको लेस भी नहीं बांधने का है, आप सिर्फ पाव हिलाओ, अपने आप वो ऑप्टिमम टाइटनेस पे करेगा. तुम्ही जर घरी कधी तुमच्या मुला मुलींना, लहान मुलींना शाळेत जायच्या आधी जर आई बाबा त्यांचे बूट घालून देतात, तर मग ते ओरडतात, बाबा खूप टाइट झाली, लेस जरा लूज करा, ये होता है. और वो ऑप्टिमम टेंशन वाला जूता था वो. तो सांगायचा मुद्दा असा आहे की you can literally do anything provided you have imagination and basic understanding of the science. Fundamental understanding हम जिसको बोलते हैं ना, वो हमारे में होना चाहिए. अगर हम फंडामेंटली समजे, इवन या कार्यक्रमात ज्या भगिनी आलेल्या आहेत, तुम्ही किचन मध्ये केमिस्ट्री हो, आप तुम्ही स्वयंपाक बनवता ती सगळी केमिस्ट्री है. आपको अगर एग्जैक्टली समझा कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सा मसाला डालने का है, कब डालने का है, कितना फ्राई करने का है, तो वो ऑप्टिमम टेस्ट आएगी, है ना. सो वैज्ञानिक दृष्टिकोन ऍज ए संशोधक तुम्हाला बाळगणं अत्यावश्यक आहे, अत्यावश्यक. आणि तुम्ही आता बघा, इवन चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मेरा इंटरनल कंबशन पे बहुत मेरा लगाव था. अब वो आईसी इंजन जो बनाया गया,
वो सदियों तक उसमें कुछ नहीं हुआ। वो कार्बोरेटर का डायरेक्ट इंजेक्शन आ गया। पर अभी आप देखो, अभी जो गाडियां इंडिया में आ रही है त्याला ते टर्बो म्हणतात, i20 टर्बो, हे आता ही टेक्नॉलॉजी 5 वर्ष जुनी आहे, ही युरोप अमेरिकेतनं आता आपल्याकडे आलेली आहे। तो वो कम सीसी के इंजन में ज्यादा पावर और ज्यादा माइलेज दे रही है अपने को। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी किसी ने ढूंढी होगी, ये मैकेनिकल इन्वेंशन है। तो ऐसी कई चीजें। आप उस दिन मैं एक फोरम देख रहा था ऑनलाइन पे, क्या हम न्यूक्लियर पॉवर, मला ते नेहमी वाटतं की आपल्या गाड्या आपण न्यूक्लियर पॉवरनी चालू शकतो का? एक लहानशी आगपेटी सारखी न्यूक्लियर सेल असली पाहिजे आणि ती सेल जन्मभर तुमची गाडी चालवेल, कारण हाफ लाईफ पिरियडनी ते फ्युएल खूप पुरेल। मग त्याला सेफ कसं करायचं? मग पेट्रोलची गरज लागणार आहे, एक दिन पेट्रोल ऑब्सोलीट होगा, ये तय है, डेफिनेटली तय। हाइड्रोकार्बन का रिलायंस हमारा कम हो जाएगा। तो ऑन एनी इवन तुम्ही आगपेटी बघा, जे जुने लोक आहेत, सेफ्टी मॅच आत्ता आलेली आहे, आत्ता म्हणजे 30-40 वर्ष आलेली। जुन्या काही सेफ्टी मॅच नव्हती। मग आपल्याला कळलं पाहिजे व्हॉट इज अ सेफ्टी मॅच, हाऊ इट इज डिफरंट दॅन द प्रिव्हियस ऍक्टिव्हिटी, है ना? तो तुमचा बघायचा दृष्टिकोन, हाऊ यू लुक एट द थिंग्स अँड हाऊ यू कॅन इम्प्रोवाइज ऑन दॅट, सो यू विल रिक्वायर दॅट। देन the preparation part, which is how to deal with your funding agency and institution. So institution को आप, आणि ये पूरे काम आपको फुल टाइम करने पड़ते हैं, उसमें लिखा रहता है। तो आप अगर प्रोफेसर हो, आपका टीचिंग लोड है, तो आपको उतने आवर आपके इंस्टीट्यूट को देने पड़ेंगे, बाकी टाइम आपको फुल फ्लेज काम करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डील विथ एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन। जब आप आपका प्रपोजल बनाओगे, your proposal should not have any spelling error, any mistake, any silly font, क्योंकि आपका सब कुछ अच्छा है पर कई सारी एरर है, आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया जाएगा। कोई भी आपको अगर 10-15 लाख रुपए दे रहा है तो दे एक्सपेक्ट यू टू राइट अ डिसेंट प्रपोजल विदाउट एनी एरर। सेम थिंग अप्लाइज टू योर PhD थीसिस आल्सो। देन योर फील्ड, आप जो काम कर रहे हो, इज इट फंडामेंटल टू द फील्ड? याचं उत्तर तुम्हाला कळलं पाहिजे। येस, इट इज फंडामेंटल टू द फील्ड। डज इट हैव अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन? अभी जैसे कल मैंने वो OMG मेरा इंडिया पे देखा, वो मुंबई का था या कौन सा था, उसने सब्जियों से रंग निकाले और वो बालों को डाय करेगा, नॅचरल कलर फॉर डाई। आता आपण ते गोदरेज आणि काय गार्नियर वगैरे वापरतो केसाला, जुन्या काही लोक मेहंदी लावायची, म्हणजे अजूनही लावतात, पण तो म्हणे आता आपण झाडांचे फळांचे रंग लावू, पानांचे रंग लावू। इट हैज अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन, प्रोबॅबली हो सकता है, राइट? वैसे ही आपल्याकडे एक सिप्ला नावाची कंपनी आहे भारतात, हमीद साहेब त्याचे मालक आहेत। तो 1980 में जब HIV आया था, अफ्रीका से शुरू हुआ था HIV एड्स, तो उसकी दवा बहुत महंगी थी, अभी भी महंगी है फॉर दैट मैटर। तो सिप्ला कंपनी ने जेनेरिक दवाई बनाई कि अगर गरीब लोगों को HIV एड्स हुआ तो वो सस्ती दवाई अफोर्ड कर सकेंगे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के लिए। तो वो तो खैर प्रोडक्ट इनोवेशन था। तो आप जो भी काम करोगे और उसका वाइड इम्प्लिकेशन होगा, जसा भारतासारखा, मी गरीब तर नाही म्हणणार देश, पण मध्यमवर्गीय देश, मग चायना आला, मग आफ्रिकेतले काही देश आले, पूर्व युरोप आला, दक्षिण अमेरिका आला, इथे जर याचा वापर करता आला तर वो बेस्ट है। डज इट मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? व्हाट हैपन, आप अगर आज आपके प्रोजेक्ट में 3G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या 4G यूज कर रहे हो, तो आने वाले 2-3 साल बाद 5G, 6G, 7G आएगी। तो आपको काम करते समय 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी एनविसेज करके ही वो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। और तुम्ही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बघितले का मला माहित नाही, मैंने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी देखा है, मैंने वो 56K का मॉडेम भी देखा है, मैंने 386 486 कंप्यूटर भी देखे। टेक्नोलॉजी में धड़ाधड़ ऑब्सोलीट होता है। तो इफ एनीथिंग यू आर डूइंग इज टू डू विथ टेक्नोलॉजी, काइंडली मेक श्योर इट विल बी अप टू डेटेड। इवन फॉर रेफ्रिजरेशन, मैं आपको बताता हूँ, पुराने टाइम हम कॉम्प्रेसर में एक अलग टाइप का गैस यूज करते थे,
आज हम एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली गॅस यूज कर रहे हैं. आज आप अलग अलग टाईप के फ्रीजचा कॉन्सेप्ट तोच आहे. मागे कॉम्प्रेसर आणि आतमध्ये तुम्ही पाणी ठेवा, फळ ठेवा, आईस्क्रीम ठेवा, 2-3 झोन बनवा. त्याच्या व्यतिरिक्त फ्रिजची यूटिलिटी नहीं है. पर अभी जिस तरीके के मॉडिफिकेशंस उसमें आ रहे हैं और ये 5 स्टार रेटिंग वगैरह आते हैं कि आपका फ्रिज एक दिन में 1 यूनिट बिजली खर्च करता है केवल, है ना. तो ये टेक्नोलॉजी के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस है. इफ यू कैन डू समथिंग विच इज एनर्जी एफिशिएंट, विच इज टेक्निकली savvy, then it is possible. Then fourth one is, can it be done on time and budget? आप उसको तय समय सीमा में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि 6-8 महीने में सब करना पड़ता है. आप अगर वो ऑलरेडी कर रहे हो तो उसका पेपर पब्लिश करके आपको फर्दर असिस्टेंस मिलता है, और एक्सेप्शनल केस में यू आर ग्रांटेड एक्सटेंशन टिल द कंप्लीशन. देन आवर कंपटीशन. ओके, सो just like we are discussing, there are many people who are trying to do the same thing. So how our approach will be different than them? Can we get there first, right? Many a time इसमें espionage होते हैं. आपका कोई ना कोई प्रपोजल आके देख लेगा, कोई आपका कॉपी करेगा आइडिया, तो आपको कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना है. फिर आपका फंडिंग एजेंसी, कि उनका ओवरऑल बजट में वो फंडिंग अपने को कितना देंगे, और ये जो है अपने प्रपोजल के लिए फिट होते हैं क्या, राइट. जो प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपके काम से मिलता जुलता है कि नहीं. देन एक प्रोग्राम ऑफिसर होता है वहाँ पे, उससे कोऑर्डिनेट आप कीजिए. मौका मिले तो कभी तो आप विजिट कीजिए. अगर वो आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाते तो गो देयर, डू सम फॉलो, पब्लिश द पेपर, सो एंड सो फोर्थ. देन इन द गाइडलाइन, ड्यू डेट. एक चीज याद रखना, मैंने कई ऐसे लोग देखे नागपुर में जिन्होंने 1 बार 2 बार पीएचडी लेने के लिए एक्सटेंशन लिया हुआ है. निव्वळ आळशी, 5 वर्षात काम केलं नाही, मग घेतलं, उसमें मतलब नहीं है. 5 साल ये बहुत बड़ा टाइम होता है. 5 साल में किसी का भी रिसर्च, अनलेस वो बीमार हो गया, कुछ ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ गए, तो वो बात अलग है. तो रिसर्च प्रोजेक्ट में आपका ड्यू डेट अगर उन्होंने बोला है कि 20 मार्च को सबमिट करना है, तो 19 मार्च की रात को 11:59 तक आपको टाइम रहता है. उसके बाद आपको वो ब्लॅकलिस्ट नहीं, वो बोलते हैं कि ये कैजुअल है. तसेच अपने विदर्भातले लोक हालाला एक नंबर है, अरे देख लेंगे ना, 2 दिन बाद भेज देंगे, बता देंगे गाय मर गई थी, भैंस बच गई थी, ये हो गया वो हो गया. ये चालत नहीं. ये बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, और जैसे ही आप भेजोगे ना तुरंत वो एक्नॉलेज करते हैं कि मिल गया करके. ऐसा भी नहीं आप बोल सकते अरे सर मैंने तो पिछले हफ्ते भेजा था, आपको नहीं मिला होगा. ये सब फंडे वहां चलते नहीं है. आप भेजिएगा, वो प्रोग्राम ऑफिसर को एसएमएस कर दीजिएगा, साहेब पाठवला है, कृपा करून चेक करा. हो सकता है कई बार आपने जेन्युइनली भेजा, उनके स्पॅम बॅम में चला गया हो, होतं. तर ड्यू डेटला करायचं. प्रपोजल लेंथ त्यांनी जर म्हटलं असेल, बरेचदा ते म्हणतात 30,000 शब्द. 30,000 शब्द म्हणजे 13 पानं, 12 पानं, 14 पानं. हे शब्द बरं का, टेबल फिगर नहीं आती इसमें, वो अलग से. अगर वैसा लिखा है उतना ही लिखने का, उसके आगे नहीं लिखने का. रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, अगर उन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट आपके प्रपोजल में चाहिए, आपको लिखना पड़ता है. फिर आता है बजट कंस्ट्रेंट या मैचिंग फंड. उसका मतलब क्या है, when the project is awarded you get up to 15% upfront money. अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको 1.5 लाख का पहला पेमेंट आता है. तो अगर आपको कुछ काम करना है तो आपके जेब में से आपको पैसे थोड़े खर्च करने पड़ते हैं, और आपको फिर वो रिएम्बर्स करके मिलते हैं. आपको लास्ट पेमेंट 20% का जो होता है वो कंप्लीशन के बाद मिलता है, बचा हुआ आपको स्टेप बाय स्टेप वो पेमेंट मिलता है. तो आपके रिसर्च करताना थोडा पैसा असणं आवश्यक असतं. नाही तर मग तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटकडनं घ्यायचं. ज्या संस्थेकडे तुम्ही काम करताय ना, त्या संस्थेतून पैसे उचलायचे आणि तुमचे पैसे आल्यावर त्यांना ते परत करायचे. बजट में कॉस्टिंग परफेक्ट होना चाहिए, ओवरहेड परफेक्ट होना चाहिए. लीवरेज फंड मतलब वही, अगर आपको पैसे की कमी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट से आप काम ये प्रोजेक्ट ले रहे हो उनको पैसे मांगो, और आपका आने के बाद उनको पेमेंट कर दो. लोकल सपोर्ट में आपके जो भी मेंटर हो गए,
आपके डिपार्टमेंट हेड है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो लोग, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा आपको तो वो लोग, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू सबमिट द एंटायर प्रपोजल, उसका रोड मैप, ठीक है। अब आपको ये देखना है की प्रपोजल कसं लिहायचं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस एंड रिलीवेंस, वो जो बोल रहे हैं उसमें हम बैठते क्या। एक लेटर फ्रॉम फील्ड एक्सपर्ट हु इज विलिंग टू हेल्प, ये हमेशा काम करता है। अगर मान लो आप फोटोसिंथेसिस में काम करना चाहते हो, से एनी टॉपिक फॉर दैट मैटर, तो फोटोसिंथेसिस का महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट होगा उसको जाके मिलिए, उनको कन्विंस कीजिए। अगर वो आपको लेटर देते, जनरली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, इनके ईगो बहुत बड़े रहते, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको फील्ड एक्सपर्ट ने दिया कि आई एम विलिंग टू हेल्प दिस पीपल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन एज एन एडवाइजर, तो फिर आपके चार चांद लग गए समझ लेने का। हाइपोथेसिस हैज टू बी टेस्टेबल, इट शुड बी एट द कोर ऑफ द योर प्रपोजल, ठीक है। एंड वंस इट इज फॉर्म, पूरा आपका प्रपोजल ये हायपोथेसिस ड्रिवन होना चाहिए। इथे फरक आहे बरं का, तुम्ही जर तुमचे सिनॉप्सिस बघितलेत तो तुमचा थिसिस खरोखर हायपोथेसिस ड्रिवन आहे का हो, प्रश्न पडेल बहुतेक लोकांना। इथे असं चालत नाही, इथे तो फक्त हायपोथेसिस ड्रिवन असतो। देन रैशनली फॉर ईच स्टडी लिंक टू एन एस्पेक्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हर हाइपोथेसिस पे आपको जस्टिफाई करके देना है कि इसके लिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए ये क्यों कर रहा हूँ, एंड देन पोटेंशियल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अगर आप ट्रू और डिस्प्रूव कर रहे हैं हाइपोथेसिस। अवॉइड टिपोग्राफिकल ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर, यूज लार्ज फॉन्ट, इंक्लूड सब हेडिंग, यूज हाई क्वालिटी फिगर। कई बार कैंडिडेट वेबसाइट से डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको पेस्ट करते हैं, वो दिखता ठीक है स्क्रीन पे, बट जब आप उसका प्रिंट आउट लोगे ना वो ब्लर होता है। तो ऐसे वक्त डाउनलोड कीजिए और फोटोशॉप में जाइए, उसका मैग्नीफिकेशन रिजोल्यूशन बढ़ाइए और फिर पेस्ट कीजिए, नहीं तो अपने आप बनाइए। ऑथर डिफाइन एक्रोनिम कमी करा, पोटेंशियल पिटफॉल आणि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, काम करते समय क्या दिक्कतें आ सकती है और वो आई तो हम क्या करेंगे, ये आपको लिख के देना है। कि बजट सिंपल, बजट में पैसे छापने का अभी भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट इज द की, वर्क ऑन इट। आपने ये सब किया पर आपको एब्स्ट्रैक्ट ही लिखना नहीं आता, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिस करना है। आपको परफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए मेरे तजुर्बे से 5 साल लगेंगे मिनिमम। हमारी टीम, हम साल में 8 प्रपोजल डालते हैं, हमारा एक एक्सेप्ट होता है। अभी लकीली या अनलकीली बोलो, पिछले साल कोई काम नहीं मिला, अगर मिला रहता तो कोरोना से वो हुआ नहीं रहता आणि सगळे काम अडकले मागच्या वेळेस ट्रॅव्हल न करता येण्यामुळे। यावर्षी एखादं काम मिळू शकतं। तर तुम्ही जर वर्षाला 5-10 प्रपोजल लिहाल तर हळूहळू तुमचं ऍबस्ट्रॅक्टवर मास्टर की आपोआप होऊन जाईल। आता काही रिव्ह्यूअर माझ्या ओळखीचे आहेत, त्यांनी आम्हाला काही फीडबॅक दिले आहेत की का बरं प्रपोजल रिजेक्ट होता। लिखा गलत है, सही तरीके से नहीं लिखा है, जो उसने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वो साइंटिफिक नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, या प्रोग्राम के प्रायोरिटी को उसका रिलेवेंस नहीं है, या उसका प्रिलिमिनरी डेटा भी नहीं है। देन सर हे सायंटिफिक प्रॉब्लेम म्हणजे काय असतं? सायंटिफिक प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्ही जो विषय निवडलेला आहे तो विषय हा शास्त्रशुद्ध पद्धतीमध्ये मांडणारा, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर म्हटलं की मी बहिणाबाईंच्या ओव्यांवर झालेला सकारात्मक परिणाम जळगाव जिल्ह्यात बघते, तर हा सायंटिफिक प्रॉब्लेम नाहीये। बाकी इकॉनॉमिक्स मधला, सायन्स मधला हे सगळे सायंटिफिक प्रॉब्लेम मध्ये येतील। तो कुठे ना कुठे हा का बरं सायंटिफिक प्रॉब्लेम नाही सर? नाही असायला पाहिजे। त्याला कोण फंड देणार, त्याला कोण फंड देणार? तुम्ही जर फक्त त्याचा आढावा घेणार असाल तर तो सायंटिफिक प्रॉब्लेम होऊ शकत नाही। हा, तो पीएचडी करता टॉपिक होऊ शकतो, आय एम नॉट डिनाइंग दॅट, पण मला हे सांगा त्याचे वाइडर इम्प्लिकेशन काय होतील? त्याची इम्प्लिकेशन फक्त जळगावच्या लोकांसाठी आहे,
भारतासाठी ते पॉसिबल आहे का? नाहीये. मग तुम्ही आंबेडकरांचं करा, तो सायंटिफिक प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर सायंटिफिक प्रॉब्लेम म्हणजे बेसिकली विज्ञानाशी निगडीत नसावा असं नाही त्याचा अर्थ. जे आपण सायंटिफिक मेथड जी बघितली, दॅट मेथड हॅज टू बी सायंटिफिक. ओके, मेथड जर सायंटिफिक नसेल तर मग तुमच्या प्रपोजलला काही अर्थ नाही. तुमच्या स्लाइडवर बघा ना, इट इज नॉट हायपोथिसिस ड्रिवन. ओके, these are purely descriptive study. The objective do not address the hypothesis. Objectives are too diffuse. Then method is not explained in the detail, right? The investigator do not have approach expertise with the method which is presented in the proposal. Expected outcome is not presented or not interpreted. The pitfall are not addressed and alternative solution not presented. Overly ambitious, too difficult to accomplish. Timeline is unrealistic for successful completion. And resubmitted proposal. कई बार क्या होता है, आपको प्रपोजल भेजने के बाद 2-3 महीने में अगर ईमेल आई, फिर से जमा कीजिए. कैंडिडेट क्या करता है? भूल जाता है. अगला साल जब आता है तो फिर से देखता है, तो गलती से वही फाइल भेज देता है. तो उनको पता चलता है कि इसने वही फाइल भेजी है. तो ऐसे केस में अगर आपको रिवीजन या रीसबमिशन की रिक्वेस्ट आती है, तो जिस दिन वो ईमेल आती है वो अटैचमेंट डाउनलोड करने का, उसमें पूरे चेंजेस करके डेस्कटॉप पे 2022 के नाम से फोल्डर बना देने का वो एजेंसी का. और जब 2022 में वो ऍड फिर से आएगी, डेस्कटॉप पे जाके वो अटॅचमेंट लेके उनको भेज देगा. हे एवढं करावं लागतं जे लोक करत नाही. पेटेंट आयपी मध्ये मी काही जात नाही. पेटेंट आयपी आपल्या याचा पार्ट नाहीये. सो आता वाजले 12:03. अब आपका जो ये होगा मल्टीपल क्वेश्चन का टेस्ट, उसमें इसके ऊपर एक आधा सवाल पूछा जा सकता है. 1 या 2 सवाल आ सकते हैं. तो हमको ध्यान में रखने का है कि रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से हमें लिखना चाहिए. थेरीज, एक्सपेरिमेंटल मॉडेल्स, हायपोथिसिस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्ह. काल जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, टायटल ऑफ स्टडी इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव्ह इज इक्वल टू हायपोथिसिस. हे परमनंटली आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. याच्यावर काही प्रश्न आहेत का? विचारा. एक तुम्हाला 2-3 सर प्रश्न असतील. टेस्टेबल हायपोथेसिस काय असते? हायपोथेसिस टेस्टेबल असतात ना? विच हो, पण त्याला टेस्टेबल म्हणजे स्टॅटिस्टिकली टेस्ट करायचं त्याला. इट हॅज टू बी टेस्टेड बाय स्टॅटिस्टिकल टूल. विदाउट स्टॅटिस्टिकल टूल यू कांट टेस्ट दी हायपोथेसिस. समजा मी एक हायपोथेसिस मांडला की मी इथून निघालो तर मला माटे चौकात जायला 15 मिनिटं लागतील. हा माझा हायपोथेसिस आहे. आणि मला चुकून 15 मिनिटापेक्षा जास्ती किंवा कमी वेळ लागला तर ते माझा लुकआउट राहील. पण मी याला टेस्ट कसा करू? आपले बहुतांश विद्यार्थी काय करतात, आमचे कॉमर्स आणि मॅनेजमेंटचे, असेच हायपोथिसिस टाकतात थिसिस मध्ये. चहा गरम आहे, चहा गरम नाही. मग 4 लोकांना विचारलं, 3 लोक म्हणे गरम आहे, हायपोथिसिस ऍक्सेप्टेड. एक लक्षात ठेवा, हायपोथिसिस इज ऑलवेज अँड शुड बी टेस्टेड बाय स्टॅटिस्टिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स ओनली. तो टेस्टेबल आहे हे तुम्हाला थिअरॉटिकल फ्रेमवर्क वरनं कळतं. जेव्हा तुम्ही थिअरॉटिकल फ्रेमवर्क मध्ये काय मेजर करणार आहे, कोणत्या रिलेशनशिप बघतायत हे दाखवलं तर तो लगेच तुमचा हायपोथिसिस बघतो, त्याला कळेल की येस इट इज टेस्टेबल है ना. तो प्रयत्न असा करायचा. हायपोथेसिस सर प्रत्येक टेस्टेबल असतातच ना? नाही, असले पाहिजेत. असतात नाही, असले पाहिजेत. कसे टेस्ट करणार मला सांगा बरं. हायपोथिसिस कसे टेस्ट करणार? स्टॅटिस्टिक्सनी टेस्ट करणार ना. टेस्ट करायचं म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स लागेल ना. बिना स्टॅटिस्टिक तुम्ही कसे टेस्ट करणार? तुम्ही जर म्हणाल की मी फक्त बार चार्ट आणि पाय चार्ट घेतो टेस्ट करतो, त्याला टेस्टिंग नाही म्हणत. टेस्टिंग केव्हा होईल? जेव्हा तुम्ही पॅरामीटर बघाल, पॅरामेट्रिक रिलेशनशिप बघाल
आणि त्या डेटाला योग्य स्टॅटिस्टिकल टेस्ट लावून त्याला टेस्ट कराल तर तो टेस्ट होईल, आहे ना. तो टेस्ट करण्यामुळे त्याची चव घेणं नाहीये, त्याला टेस्ट म्हणजे फक्त स्टॅटिस्टिक्स होतो. आणि स्टॅटिस्टिक्स नाही लावलं तर मग तो टेस्टेबल नोशन नाहीये ती, तो डिस्क्रिप्टिव्ह झाला हायपोथेसिस. Right? So keep that in mind. Statistic must be there to test the hypothesis. If there is no tool applied, that hypothesis has no meaning whatsoever. It is merely a judgment or opinion. It doesn't count as a part of finding. ती फाइंडिंग नाही आहे तुमची, ती मॅनेज केलेली फाइंडिंग आहे. कळलं? अजून काही आहेत का प्रश्न? Sir, please once repeat statistical hypothesis. No, there is no such thing as a statistical hypothesis. Hypothesis is the one which is tested by statistics. तुमचं जे गृहीत कृत्य आहे, हायपोथेसिसला मराठीत गृहीत कृत्य म्हणतात, त्याला टेस्ट म्हणजे त्याची परीक्षा कशी घ्यायची की त्याला स्टॅटिस्टिक्सचे टूल लावायचे. स्टॅटिस्टिक्सचे टूल म्हणजे स्टॅटिस्टिक्सच्या टेस्ट लावायच्या. तो जो डेटा राहील त्याला आपण टेस्ट लावायच्या, टी टेस्ट, वन टेल एनोवा, ज्या काही सुटेबल टेस्ट आहेत त्या लावायच्या. ते लावल्यावर त्याचे जे तुम्हाला रिझल्ट मिळतील त्या रिझल्टवर तुम्हाला इंटरप्रिट करायचं आहे की तुमचा नल हायपोथेसिस हा करेक्ट आहे की इनकरेक्ट आहे. त्याला आपण स्टॅटिस्टिकल हायपोथेसिस टेस्टिंग असं म्हणतो, है ना. तुमचं आता जे काही सेशन होईल येणाऱ्या 1-2 दिवसात तेव्हा तुम्हाला ते क्लिअर होऊन जाईल. स्टॅटिस्टिक्सनीच आपल्याला हायपोथेसिसला टेस्ट करायचं असतं, तसा तो टेस्ट करता येत नाही, किंबहुना करायचा नाही. अजून काही प्रश्न आहेत का या सेशनवर? हॅलो. हा बोला. सर, हे जे प्रपोजल पाठवायचं आहे रिसर्च याच्यासाठी, तर या प्रपोजलला इज इट मस्ट दॅट द PI must be a professor of senior college? यस. आप क्या होता है, मान लो आपने प्रपोजल डाल दिया, इनका सवाल बहुत वैलिड है, इन्होंने PI भी डाल दिया है जो इनको लगता है काम करेगा, और अगर इनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और ऐन वक्त पे PI ने बोला अरे मेरे को मालूम ही नहीं, मेरा नाम डाल दिया, मेरे पास टाइम नहीं, तो अब गड़बड़ में आते हैं. तो आपको प्रपोजल बनाते समय, मतलब बनाने से पहले आपको जो भी प्रोफेसर लेवल की फैकल्टी है उनसे एक बार चर्चा करके, क्योंकि उनका बायोडेटा लगेगा, उनके पेपर लगेंगे, टाइटल कितने पब्लिश किए हुए, तो उनका नाम डालना मैंडेटरी है. आपने बिना प्रोफेसर लेवल का प्रपोजल सबमिट किया तो वो वैसा ही रिजेक्ट होता है, वो बिना देखे रिजेक्ट होता है. म्हणून PI इज अ मस्ट, और वो भी प्रोफेसर लेवल का ही होना चाहिए विथ सिग्निफिकंट एक्सपिरियन्स, नाही तर ते रिजेक्ट होतं. म्हणजे समजा तुम्ही, मी आणि हा अभिलाष आहे, आपण तिघांनी टाकलं, मी तसा प्रोफेसर लेवलचा आहे, पण मला ते म्हणतात की तुम्ही मॅनेजमेंटचे आहात, तुम्ही सोशल सायन्सचे नाही आहेत, कारण मी सोशल सायन्स मध्ये फक्त 10 वर्ष काम केलंय, तर मी मॅनेजमेंट मध्ये मी PI होऊ शकतो, पण जर मला सोशल सायन्स मध्ये काम करायचं तर मला अजून 3 वर्ष वाट बघावं लागेल. माझे 11 प्रोजेक्ट झाले आहेत मेजर, आता मी 3 वर्षानंतर मी PI म्हणून क्वालिफाय होईल, मला स्वतः काम करता येईल, अजून 3 वर्ष मला, म्हणजे 3 का 4 म्हणा तुम्ही, 2024 एंड, उसके बाद मैं PI बन सकता हूँ सोशल सायन्स का. तुम्हाला 15 वर्षाचा अनुभव लागतो मॅडम त्या फील्डचा काम केल्याचा. मग एक तर ते टीचिंग फील्ड असो, टीचिंग सोबत तुमचं फील्डवर्क वगैरे काही असेल ते असेल तर तुम्ही ते करू शकता. मॅनेजमेंटचं आहे माझ्याकडे, पण मॅनेजमेंटमध्ये प्रोजेक्ट नहीं है ना मैडम, मैनेजमेंट में कोई प्रोजेक्ट नहीं देता है. 2 साल में एक आधा प्रोजेक्ट आता है, वो भी मुश्किल से मिलता है, वो है ना. वो PI लगता है. टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, PI Yes. with a minimum 15-year experience. And sir, one more question. Can we give the proposal of interdisciplinary subjects, like suppose my subject is zoology, and if I'm interested topic or any proposal for the related to botany, can I do that? Interdisciplinary is allowed in a PhD thesis,
but for the research itself, अभी देखो, it is allowed. I am not saying कि आप बॉटनी हो तो zoology का मिलता कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, बट हमारे टीम में हमारे जो पीआई है वो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट प्लस मैनेजमेंट। सेकंड जो है वो ह्यूमैनिटीज वाला है, और मैं मैनेजमेंट का हूँ, बट हमारे मेजर काम ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में होते, तो दे आर काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी बट नॉट सो फार, दे आर नॉट व्हेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तर क्लोजली जर असेल इकडे तिकडे 10-20% तर मिळतं, नाही तर मग ते प्रश्न विचारतात की तुम्ही झुऑलॉजीचे, तुम्हाला बॉटनी काय कळतं, मग तुमचे बॉटनीचे पेपर वगैरे असतील तर यू कॅन जस्टिफाय। आता जसे माझे सोशल साइंसचे पेपर आहेत, आमचे सगळ्यांचे पेपर आहेत, सो वी कैन जस्टिफाई कि हाँ हमको मालूम है हम क्या करने जा रहे हैं, तो ऐसा मिलता है, बट जनरली वो एडवेंचर माना जाता है। आप उस तरीके से म्हणजे त्यांना हरकत नाहीये, त्यांचा ऑब्जेक्टिव्ह हा असतो कि उन्होंने आपको पैसे दिए तो आप वो काम पूरा सक्सेसफुली उनको करके दोगे, दैट्स इट, दे डोंट हैव एनी अदर रिजर्वेशन। Yes, sir. Sir, I want to add something here as an interdisciplinary research. Yes, sir, we can collaborate with other department, but we have to take co-investigator from that subject. Principal investigator from the main subject, and if you want to shift to, if you are from zoology, and if you want to couple with the botany, so then you have to take one co-investigator from botany subject. Okay, ma'am. Thank you very much. Hello, ma'am. Absolutely, you are right. Actually, recently we sanctioned one project. So that is RGST, Rajiv Gandhi Science and Technology. Rajiv Gandhi Science and Technology Foundation. Yes, so we collaborate with the botany department. Actually, I am the co-investigator. Yes, and, yes. Dr. Kiraj Naik is the investigator, is the principal investigator. Yes. Any more questions? सर आपण ब्रेक घ्यायचा 10 मिनिटाचा? हो, 12:13 झालेत, आपण 12:23 येऊ आणि मग मी तुम्हाला 1 तास 10 मिनिटं इथिक्स वर बोलेल। ओके सर, 10 मिनिट्स ब्रेक। येस, ठीक आहे, ओके, ओके, थँक्यू. थँक्यू।